بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا ٹائٹل ہے خذ الحلم۔ حلم کو تھامیے، ٹھہراؤ کو تھامیے۔ بیداری کے چند قدم لینے کے لیے ٹھہراؤ کو تھامنا تو اشد ضروری ہے، اس لیے کہ ٹھہراؤ ہوگا تو علم پر تھوڑا سا غور و فکر کر سکیں گے، اور غور و فکر کریں گے تبھی اچھے حصے کو، فائدہ مند حصے کو اپنانے کی سٹرگل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 میں انسان کی مخلوق کی ایک ویکنس بتائی ہے، یعنی ہم انسانوں میں یہ کمزوری پرومیننٹ ہے، زیادہ تر ہم اس ویکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک چیز کے بارے میں علم ہو کہ انسان یہاں ٹھوکر کھا سکتا ہے تو پھر انسان اس راستے سے بچ کر چلتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان میں ہیسٹینس، جلد بازی ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو رب کے کلام سے جوڑ لیتے ہیں وہ اپنی جلد بازی پر، اممیچورٹی پر، واویلا مچانے پر، شور شرابہ کرنے پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو خذ الحلم میں آج ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکیں کہ کن کن مواقعوں کے اوپر ہمیں حلم کی اور ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں ہم جس دنیا کا آج حصہ بن چکے ہیں اس دنیا میں آسانیاں، لگژریز، ٹیکنالوجی، نعمتوں نے ہمیں کچھ ہیسٹی بنا دیا ہے، جلد باز بنا دیا ہے، لیکن یہ آسانیاں جو دنیا میں ہمارے لیے اس وقت آس پاس بکھیر دی گئی ہیں اس نے ہمیں کچھ تھوڑا سا مزید عجلت میں رہنے والا انسان بنا دیا ہے۔ آپ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر انسانوں میں جلدی جلدی خوشی حاصل کرنے کا جو ایموشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یا جلدی جلدی خوش ہونے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی میں خوش ہو جاؤں، ابھی مجھے یہ مل جائے، ابھی میری خواہش کی تکمیل ہو جائے۔ یہ اس لیے ہمارے اندر ڈیویلپ ہو رہا ہے، یا اس لیے ہماری اولادوں میں یہ چیز آ رہی ہے، اس لیے کہ کم وقت میں آج کی دنیا بہت کچھ اچیو کرنے کی طرف ہمیں لے جا چکی ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں نا، اور اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ ہم بے صبرے ہو گئے، عجلت کا شکار ہو گئے، امپیشنٹ ہو گئے۔ ڈائٹ بھی کرنی ہوگی تو بس سلم ٹی پلا دیں، ہلنا نہ پڑے، اٹھ کر ہمت اور محنت کرنی نہ پڑے، چائے پیتے پیتے دبلے ہو جائیں، انسٹنٹ کھانا بن جائے، انسٹنٹ کام ہو جائے، انسٹنٹ ڈیلیوریز ہو جائیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ آن لائن شاپنگ نے ایک مزاج ہمارا اور بنا دیا ہے، ٹیکسٹ میسیجز نے، واٹس ایپ میسیجز نے، زوم کالز نے ایک مزاج ہمارا اور بنا دیا ہے کہ ہمیں چیز مکمل فوراً مل جاتی ہے، انسٹنٹینیسلی مل جاتی ہے، تو ہم عجلت والے ہو گئے، امپیشنٹ ہو گئے۔ یہ سب اپنی جگہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے کنسیکوینسز میں جو نقصان انسانیت اٹھا رہی ہے ہولسٹیکلی وہ یہ ہے کہ ہم بے صبرے ہو گئے ہیں، ہم پیشنس کی نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان کسی اہم چیز سے دور ہونے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس اہم چیز کے قریب ہونے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج ہمیں اور ہماری اس جنریشن کو جو کل ہماری جگہ کھڑی ہوگی، ہمیں پیشنس سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ عجلت نکلے، حلم آئے، میچورٹی آئے، اور ہمارے اندر سے یہ بے صبریاں، یہ
जल्द बाजियां निकल जाएं। कैसे शुरू करें इसको? ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया ने हमें एक माइंडसेट दिया है, वो एक बड़ा फिक्स्ड माइंडसेट दे दिया है। मैं इस वक्त अभी ऑर्डर करूं और मेरी पसंद की चीज इतने मिनट्स में मेरे सामने आ जाए। यह है फिक्स्ड माइंडसेट। सोचने समझने की सलाहियत से हम ज्यादातर महरूम होते जा रहे हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जो जल्दबाज होता है, और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है जो सोच सकता है, जो सब्र कर सकता है, जो इंतजार कर सकता है। अक्सर और बेशतर आज माएं जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, और वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अलजेब्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कई मर्तबा वो कंप्लेंट करते हैं अम्मा से कि अम्मा जब कैलकुलेटर है तो मैं अलजेब्रा क्यों पढ़ता हूं, मैं इतनी मुश्किल इतनी टफ मैथमेटिक्स की किताब क्यों पढ़ता हूं। ये बिल्कुल मासूमियत वाला जुमला वैसा ही है जैसा कि आज कोई कहे कि भाई जब सारा विकिपीडिया पर, गूगल पर सारी दुनिया की हिस्ट्री टाइमलाइन मौजूद है तो मैं यूनिवर्सिटी जाकर हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्यों पढूं। इसकी वजह, चाहे यह सवाल आपका बच्चा करे जो मैथमेटिक्स से परेशान है, या यह सवाल आपका यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा करे जिसको हिस्ट्री नहीं पढ़नी लेकिन उसको पढ़नी पड़ रही है, इसका एक जवाब है, वो ये कि दुनिया का निजाम वही निजाम चल रहा है जो इंसानियत को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जा सके। तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्से जिंदगी के, ये जिम्मेदारियां और ये एंगल्स जिंदगी के फायदा देते हैं। ये इसका जवाब है। आप क्लास में सिर्फ अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री नहीं सीख रहे होते, आप इल्म के साथ साथ एक दूसरे से मिलना जुलना, सोशलाइजिंग, एटिकेट्स, आदाब, गुफ्तगू के पैटर्न्स, बैठने के तरीके, फ्रेंडशिप्स, एक उस्ताद को कैसे गुफ्तगू में अपने लेकर आना है, दोस्त से कैसे बात करनी है, दोस्त का अदब भी करना है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी करना है, उस्ताद की रिस्पेक्ट और उनका अदब भी करना है। ये सब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सिनारियो से सीख रहे होते हैं, और ये पूरा सिनारियो आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जाता है। लोग माशरे में आज भी आपको दो तरह के मिलेंगे, लॉपसाइडेड, एक छोटी सी टनल से आगे सोच नहीं सकते, उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है। इन्हीं लोगों में जल्दबाजी होती है, इन्हीं लोगों में नाशुक्री होती है, इन्हीं लोगों में उज्जलत होती है। और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो टनल से बाहर निकलकर देखना चाहते हैं, एफर्ट करके चलते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं कि इस टनल से बाहर की दुनिया में कितनी रोशनी है, कायनात में क्या रंग बिखरे हुए हैं, क्या कुछ आसपास चरिंद और परिंद हैं। इनका होराइजन बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है। यह है ग्रोथ माइंडसेट। आज आप नुकसान जहां टेक्नोलॉजी का ये देखते हैं कि इंसान इम्पेशेंट हो गए हैं, आज जहां हम आसानियों का नतीजा ये देख रहे हैं कि बच्चों को अब मेहनत करते हुए सब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल इसी तरह से आज हम मुसलमानों को गूगल पर दीन का इल्म हासिल करते हुए जो देखते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि क्या जरूरत है क्लासेस में आकर बैठने की, जबकि सब कुछ हमें जो है वो एक अपने लैपटॉप पर मिल जाता है। ये वही पूरा एक विशेष साइकिल है जो आपको बता रहा है कि इल्म सिर्फ किताब से आप नहीं सीखते, जब आप उस्ताद के सामने जाकर बैठते हैं आप उस्ताद से सीखते हैं, उसके उठने बैठने से सीखते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे के तासुरात से सीखते हैं, उसके मामलात और डील करने को देखते हैं तो उससे सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। ये वो तालीमात हैं जो 1400 साल पहले हमें कुरान ने दी हैं कि उस्ताद के साथ बैठकर एक माहौल के अंदर इल्म हासिल किया जाए। आज दुनिया बता रही है कि अगर अपनी औलाद को ग्रोथ माइंडसेट देना है, अगर आपने उनके अंदर से
उज्जलत, जल्दबाजी, हेस्टीनेस निकालनी है तो उनको सोशलाइज करना सिखाइए, लोगों में उठना बैठना सिखाइए, उनको टनल विजन से बाहर लेकर आएं, वो अपने एक छोटे से सुरंग से बाहर देखने के काबिल हो जाएं, उनके अंदर बेसब्री ना आए। साइकोलॉजी आज सिखा रही है, दुनिया आज सिखा रही है, और हमें ये सब बातें कुरान 1450 साल पहले सिखा चुका है। जब अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ये बात बता दी कुरान के अंदर, अभी सूरतुल अंबिया की आयत आपके सामने रखी, अल्लाह ताला ने कहा है खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है। सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलूनी, मैं अनकरीब तुमको अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो देखो उस पर जल्दबाजी मत करना, हेस्टी नहीं होना। कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया कि जल्दबाजी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, अच्छी सिफत नहीं है, इसको अपने अंदर से निकाल दो। दुनिया आज बता रही है, इसलिए कि मर्ज बहुत बढ़ गया है। आप दुनिया के बताए हुए टूल्स को भी इस्तेमाल कीजिए और आप कुरान को भी साथ साथ थामे रहिए। इस्लाम हमारा ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहता है। इस्लाम चाहता है कि हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आए। इस्लाम चाहता है कि इंसान डिलिबरेट प्रैक्टिस टैक्टिस अपनाए, यानी कि इंसान अपनी ख्वाहिश से अच्छे अमाल को अडॉप्ट करे, अपनी ख्वाहिश से रब की फर्मा बरदारी करे, अपनी ख्वाहिश से हिल्म अडॉप्ट करे, अपनी ख्वाहिश और मेहनत से जल्दबाजी को अपने अंदर से निकाल दे। और ये कैसे होगा? हिल्म कैसे आएगा? कुरान क्या सिखा रहा है? ग्रोथ माइंडसेट क्या सिखाता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इंस्टेंटेनियस इल्म हासिल करने से खुद को हटाएं। ये जो पीडीएफ पे किताबें पढ़ने का माइंडसेट बनता जा रहा है, इट्स ओके, इट्स गुड टू अचीव दिस पार्ट, लेकिन लाइब्रेरी जाना या बुक स्टोर जाना, आइल्स के अंदर से अपनी पसंद की किताब को उठाना, उस किताब को थोड़ा सा 4-5 पेजेस में आगे पीछे देखना कि उसका प्लॉट कैसा है, कहानी कैसी है, टेक्स्ट कैसा है, पेजेस कैसे हैं, फिर उसको अपने पैसे खर्च करके खरीदना, फिर उसको घर लाना, फिर एक मोटिवेशन होना कि मैं कब इस किताब को, अपनी नई बुक को पढ़ना शुरू करूंगी, और फिर उस किताब को एक एक सफ़े को ऐसे पढ़ना कि जैसे आप हर सफ़े में एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। दिस इज ऑल प्रैक्टिस, जिसको आप डिलिबरेट प्रैक्टिस टैक्टिस आज कहते हैं। मेहनत इंसान के अंदर हिल्म लेकर आती है। दुरुस्त रास्ते पर कॉन्स्टेंटली इस्तिकामत के साथ चलते रहना इंसान में ठहराव लेकर आता है। इससे इंसान का जहन फॉर्म होता है, ग्रोथ माइंडसेट बनता है, और फिर इंसान तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और कहां तक इंसान फिर तेजी से आगे तक बढ़ता है? अगर आप इस्लाम का रास्ता देखें तो आप में हिल्म बढ़ता जाता है, नरमी, शुगुफ्तगी, मुस्कुराहट, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, इसलिए कि लिमिट तो कोई भी नहीं है। आप अल्लाह के रास्ते पर, एहसान के रास्ते पर चलती जाइए, गुनाहों से खुद को बचाती जाइए, तौबा के दरवाजों से निकलती जाइए, और अपने रब के दिए हुए कलाम की रोशनी में एक पुरउम्मीद अंदाज में अपने अंदर मोहब्बतें, आदाब, एटिकेट्स, रिस्पेक्ट, सोशलाइजिंग मैनर्स को डेवलप करती जाइए। अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। दुनिया कहती है कि आप प्रैक्टिस करें एंड इट विल मेक यू परफेक्ट। आप गोल्फ खेल रहे हैं तो आप गोल्फ स्विंग्स को प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। आप पेंटिंग करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो आप अपने कैनवस के ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं, ब्रश स्ट्रोक्स के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इसी तरह से इस्लाम सिखाता है, आप एक नेकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, उस नेकी को प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। उस नेकी की बरकत, उसके कंसिक्वेंसेस, उसके समरात आपके अंदर बेसब्री को हटाकर सब्र लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे। खुज़िल हिल्म का मामला होगा अगर हम जिंदगी में एक भी नेकी अडॉप्ट करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मफहूम के मुताबिक उस नेकी को आखिरी सांस तक थामे रहें। मजीद नेकियां भी आती जाएंगी साथ साथ, और
प्रीवियस नेकियों की वजह से मेच्योरिटी भी इंसान के अंदर आती जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो नेकी आज शुरू की है वो कल तारीख ना बन जाए, बल्कि आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे। मौत तक डिलिबरेट प्रैक्टिस हम इस नेकी की करते रहें। जितनी नेकियां थामते रहें उसकी डिलिबरेट प्रैक्टिस, अपनी पूरी चाह से प्रैक्टिस, उसको अमल का हिस्सा बनाकर रखें। यही कामयाबी का रास्ता, यही एहसान का रास्ता, यही अल्हम्दुलिल्लाह हिल्म अडॉप्ट करने का रास्ता है। जल्दबाजी वरना इंसान के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नाराजगियां, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेसेस लेकर आती है। अपने अंदर से इन कमजोरियों को अगर निकाल कर दूर फेंकना है तो आपके और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जहां दुनिया के उलूम से ग्रोथ माइंडसेट हासिल करने के डिफरेंट टूल्स और टैक्टिक्स मौजूद हैं, वहां हमारे पास हमारे प्यारे दीन इस्लाम, कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कई ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको हम अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने हिसाब और सर्कमस्टांसेस से उठाते जाएं, सीखते जाएं, अमल का हिस्सा बनाते जाएं और अपने अंदर हिल्म को अपनाते जाएं। खुदिल हिल्म जिंदगी भर का, लाइफ टाइम का मामला है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रिफाइन होने के लिए भेजा है। जब हम आए थे रूह बहुत रिफाइंड और प्योर थी। जब हम जिंदगी में शऊर संभालते हैं और अपने रब के दिए हुए मामलात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, रूह कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, बीमार हो जाती है, अंधी हो जाती है या पैरालाइज्ड हो जाती है। उसको दोबारा से सेहत देने के लिए उसको कुरान के इल्म की डोज देना होती है। जब रूह बीमार होती है हम जल्दबाज होते हैं, बेसब्रे होते हैं, बेचैन होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंजाइटीज का शिकार होते हैं। आप कुरान के सामने आकर बैठे, रूह को तवानाई मिलने लगती है, फ्यूल मिलने लगता है, रूह सेहतमंद होने लगती है। रूह सेहतमंद होती है, इंसान की एंजाइटीज सुकून में बदलने लग जाती हैं। इंसान का बेसब्रापन सब्र में कन्वर्ट होने लग जाता है। इंसान की उजलत हिल्म में बदलने लग जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम की रोशनी में हिल्म को थामने वाला बनाए और आज से ही हम बेदारी के ये चंद कदम अपनी जिंदगी में लें कि हम उजलत से बाहर निकल आएं। सुकून के साथ मामलात को हैंडल करना अल्लाह हमें सिखा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।